سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی قسط نمبر 14 بائی الیاسیتا پوری۔ سلطان اماسیہ میں پورا موسم سرما گزارنا چاہتا تھا مگر اپنی فوج سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج کو آرمینیا کی تسخیر پر لگا دیا اور کامیاب رہا۔ وہ اپنی فوج کے جوش و جذبے کو زندہ اور برقرار رکھنا چاہتا تھا مگر وطن کی دوری نے سپاہیوں کو دل برداشتہ کر رکھا تھا۔ سنان پاشا استاد ارسلان زکریہ سلطان کے سب سے زیادہ پرستار اور فرما بردار تھے، لیکن یہ بھی کبھی کبھی سلطان کی ضد اور انا سے عاجز آ جاتے۔ زکریہ ناہید کی وجہ سے سلطان کا بہت زیادہ مطیع اور مجاور ہو رہا تھا۔ اب اس کی ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ سلطان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن سلطان کی مرضی کے بغیر ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ ناہید کے خیمے کے پاس جاتا اور اس کے آس پاس گھوم پھر کر واپس آ جاتا۔ اس کو بہت افسوس تھا کہ ناہید کے خاندان پر جو بیتی اور صفی الدین کو جس طرح قتل کیا گیا تھا، معلوم نہیں کس طرح ناہید اس سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں ناہید سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایسا موقع ہاتھ نہ آتا تھا۔ رات کو خیموں میں ہزاروں شمعیں روشن ہو جاتی تھیں۔ زکریہ اپنے خیمے سے ناہید کے خیمے میں روشن شمع کی جھلک دیکھتا رہتا اور اپنے دل میں ایک لذت آمیز کسک محسوس کرتا رہتا۔ سنان پاشا کی تیز نظریں زکریہ کے سینے میں موزن عشق کے بلاخیز کی کیفیت کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ استاد ارسلان بھی زکریہ کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں اس کی کوئی بات سلطان کو بری نہ لگ جائے۔ زکریہ نے کوشش کی کہ وہ ناہید کے خیمے کی نگراں خاتون سے ساز باز کر کے ناہید سے ایک تفصیلی ملاقات کرے اور اس کے دل اور دماغ پر جو موجود نفرت کے گرد و غبار کو اپنی مؤثر اور پردلیل باتوں سے ضائع کر دے، لیکن نگراں خاتون سلطان کے غصے اور عتاب سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتی تھی۔ اس کا دماغ غیر معمولی تھا۔ اس نے مفاہمت نہ ہو سکنے کے بعد زکریہ کو ناہید کے خیمے کے آس پاس ٹہلنے دیکھا تو کانپ گئی۔ آہستہ سے زکریہ کے پاس پہنچی اور سرزنش کرنے کے انداز میں پوچھا، نوجوان تو یہاں کیا لینے آتا رہتا ہے؟ زکریہ نے بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا، خاتون میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ عورت نے پوچھا، وہ کس طرح؟ زکریہ نے جواب دیا، خاتون آپ جس خیمے کی نگرانی فرما رہی ہیں وہاں ناہید رہتی ہے، میری روح، میری کائنات اور میری تمنا، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے اس کو جھلک دیا، صاحب زادے کیا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اس وقت؟ تو یہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ نہ اس سے واقف نہیں بھلا آپ؟ زکریہ نے جواب دیا، خاتون میں اس سے اتنا ہی واقف ہوں کہ یہاں کوئی اور شخص اس سے مجھ سے زیادہ واقف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عورت نے جلدی جلدی کہا، اچھا اب تو یہاں سے چلا جا، ورنہ اگر کس نے تجھے اس وقت یہاں دیکھ لیا اور سلطان کو اس کی خبر کر دی تو ہم دونوں ہی کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ زکریہ نے جواب دیا، اچھا اگر آپ اس سے میری ملاقات نہیں کرا سکتی تو اتنا تو کر سکتی ہیں کہ میری طرف سے کہہ دیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری کوئی خطا نہیں، میں بے قصور ہوں اور میں اپنی ناکردہ گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عورت نے زکریہ کو دھمکی دی، نوجوان تو فوراً چلا جائے یہاں سے ورنہ میں شور کر دوں گی۔ میں ناہید سے کسی بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتی، ہو سکتا ہے کل میں یہ باتیں سلطان معظم کے گوش گزار کر دوں۔ زکریہ مایوس اور دل شکستہ وہاں سے واپس آیا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، بے بسی اور مجبوری کا احساس اس کا دم گھونٹے دے رہا تھا۔ اس نے اپنے خیمے کے در پر میخ سے بندھی رسی کے پاس کسی کو بیٹھے دیکھا، جہاں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ زکریہ نے اس پر کوئی توجہ دیے بغیر ہی اپنے خیمے میں داخل ہونا چاہا مگر وہ شخص کھڑا ہو کر کہا، نوجوان تجھے استاد ارسلان یاد فرما رہے ہیں؟ زکریہ نے پوچھا کہ ابھی اسی وقت؟ اس نے جواب دیا، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ زکریہ کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ استاد ارسلان کے پاس اس وقت چلا جائے، لیکن وہ ناہید کی وجہ سے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی کو ناراض نہ کرنے سے کوئی شخص کسی وقت اس کے کام آ سکتا ہے۔ زکریہ استاد ارسلان کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ استاد اپنے پشت پر ہاتھ رکھے بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ وہ زکریہ کو اپنے سامنے دیکھتے جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر ٹکٹکی باندھے زکریہ کی صورت دیکھ کر پھر پوچھا، زکریہ تو کہاں گیا تھا؟ زکریہ سمجھ گیا کہ استاد ارسلان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ ناہید کے خیمے کی نگراں خاتون سے کچھ نازیبا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، استاد محترم جب تک ناہید کا قرب میسر نہ آیا میں اس خوشی میں مبتلا تھا کہ میں نے اپنے جذبہ عشق پر قابو پا لیا ہے، لیکن اب میں اپنے آپ کو سیل عشق میں ایک تنکے کی طرح پا رہا ہوں۔ استاد ارسلان نے لعنت ملامت کی، زکریہ تو نے سلطان کے دل میں اعتماد پیدا کر لیا ہے، اس لیے احتیاط اور صبر و تحمل سے کام لے، تو یہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر تیری زندگی میں بھی ابھی سے بے اعتدالی اور افراد و تفرید نے جگہ بنا لی تو نہ صرف یہ کہ سلطان کے اعتماد سے محروم ہو جائے گا بلکہ عملاً بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ ناہید کا خیال اپنے دل سے نکال دے کیونکہ وہ شاہ صفی کی بیوی ہے
और इसको किसी भी वक्त शाह के पास वापस भेजा जा सकता है। ज़िक्रिया को अपने उस्ताद की बातों में खुलूस और वज़न महसूस हुआ। खजालत से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैं शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ कि मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा और नाहिद का ख्याल तक अपने दिल से निकाल दूँगा। उस्ताद अरसलान ने मज़ीद तंबीह की, मुझे मालूम हुआ कि सुल्तान मुअज़्ज़म नाहिद के सिलसिले में तुझ पर गहरी नज़रें रखे हुए हैं। ज़िक्रिया ने जवाब दिया, अगर ये बात है तो मैं सुल्तान के एतमाद को बहरहाल बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। उस्ताद अरसलान ने 4 शाखों वाले शमादान के नीचे बैठ गया और अपने सामने ज़िक्रिया को खड़ा रखा बोला, ज़िक्रिया, क्या तो इस 4 शाखों वाले शमादान को देख रहा है? ज़िक्रिया ने सादगी से जवाब दिया, जी उस्ताद मोहतरम, देख रहा हूँ। उस्ताद ने पूछा, इसकी रोशनी कहाँ कहाँ पहुँच रही है? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, शमादान के निचले हिस्से के अलावा हर जगह पहुँच रही है। उस्ताद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई और बोला, ज़िक्रिया, यही हाल इन सब का है जो सुल्तान के मुकर्रबीन में होते हैं। सुल्तान शम्मा की मानिद होता है और हम सब इसके ज़ेरे साया, बल्कि इस शम्मा के साया तले। सुल्तान से वो लोग तो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं जो कभी कभी तकर्रुब हासिल कर लेते हैं, और रहे हम तुम जैसे ज़ेरे नगी लोग तो अक्सर महरूम ही रहते हैं, इस तरह जिस तरह चिराग तले अंधेरा रहता है। ज़िक्रिया ने दिलशिकस्ता लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, ये भी कोई ज़िंदगी है। मैं अपने अंदर एक तूफ़ान सा महसूस कर रहा हूँ जो इधर उधर फैलने और बढ़ने के लिए तिलमिला रहा है। ये सरकशी पर माइल है, लेकिन सुल्तान का ख्याल है कि इसको जुए कम आब रखना चाहता है। अगर ये दबाव इस तरह बरकरार रहा तो मैं किसी वक्त भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूँगा। उस्ताद अरसलान ने से झिड़क दिया, ये सारी शायराना बातें हैं, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं। मेरी बातों का लुबे लुबाब यह है कि नाहिद या किसी लड़की या किसी औरत को तेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये भी सुन ले कि वहीं से तेरी ज़िंदगी में ठहराव, जुमूद और बुज़दिली पैदा हो जाएगी जो किसी भी मर्द के लिए हकारत और ज़िल्लत का निशान होती है। ज़िक्रिया भी इन बातों से तंग आ चुका था। बेजारी से बोला, ए काश मैं एक आम इंसान होता और मुझे सुल्तान का कुर्ब न हासिल हुआ होता। सुल्तानी कुर्ब के एजाज़ ने हम इंसानों को इसके सिवा और क्या दिया है कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमें इससे परहेज़ और उससे गुरेज करना चाहिए। उस्ताद अरसलान ने तुंदोते नज़रों से ज़िक्रिया को घूरा, तू यकीनन जिनसी दबाव का शिकार है। इस वक्त मैं तुझसे कोई बात भी ना करूँगा, तू जा सकता है। जाने से पहले ही सुनता जा, अगर तू सुल्तान की आजमाइशों से गुजर गया तो एक न एक दिन कोई बहुत बड़ा मनसब हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। ज़िक्रिया कोई जवाब दिए बगैर ही खेमे से निकल गया। वो हर कदम पर खड़ी कदगनों से इतना आजिज़ और दिल बर्दाश्ता था कि अब वो ये सोच रहा था कि इस माहौल में रहना भी नहीं चाहिए। इसे जजीरा क्रेट का आबाई मकान याद आ रहा था, जो भी मकानात के सिलसिले, मछलियों की बू और हद नज़र तक फैला समंदर का पानी। इसको वो गिरजा भी याद आया जिसमें इंसानों का हजूम बड़ी पाबंदी से जाया करता था। गिरजे की घंटियाँ जो हर रोज़ सुबह शाम सुनाई देती थीं। गिरजे के ख्याल के साथ ही इसको अपना मुसलमान होना याद आ गया। मस्जिद में, जिसमें मुसलमान 5 वक्त जमा होकर खुदा वाहिद की इबादत करते हैं, इसको मस्जिदों के सामने गिरजों का वजूद हकीर और मज़े का खेसा महसूस हुआ। मस्जिदों से बुलंद होने वाली 5 वक्त की अजानें और गिरजों की घंटियों का शोर इस्लाम ने इसके दिलो दिमाग में घर कर लिया था, इसलिए गिरजों में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने वो सारी रात बड़े कर्ब और इसराब में गुजारी। रात को ख्वाब में भी इसी उलझन में दिखाई देते रहे। वो कई बार चौंक पड़ा, लेकिन तबीयत पर काबू रखा। सुबह होते होते इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इसको जो कुछ करना है अपने कुव्वते बाजू और बलबूते पर करना है। वो कई दिन तक अपने खेमे से नहीं निकला। इसको कुछ पता ना था कि सनान पाशा और उस्ताद अरसलान इसके बारे में किस तरह सोचते हैं, सुल्तान ने इसकी बाबत क्या फैसला किया है। तबीयत की बेजारी ने इसको उज़लत नशीनी पर मजबूर कर दिया था, मगर दिल के किसी गोशे में यह अंदेशा चुटकियाँ ले रहा था कि उस्ताद अरसलान, सनान पाशा और सुल्तान की नज़रों से एकदम ओझल हो जाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक दिन वो अपने खेमे के दर पर खड़ा हद नज़र तक फैले हुए असाकिरे सुल्तानी के खेमों का मुशाहिदा कर रहा था। इसने खेमों के सामने अमासिया की वो इशारा देखी जो बाहर से आने वाले सुल्तानी असाकिर तक आने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस शाहरा पर दूसरी हुकूमतों के कासिद और सफीर अपने अपने घोड़ों पर सवार इन्हें दुल की चाल से दौड़ाते भगाते नजर आते थे। इन्हें नहायत तकल्लुफ और एहतमाम से सुल्तानी दारुल ज़ियाफ़त तक पहुँचा दिया जाता। ज़िक्रिया ने शाहरा पर चंद घुड़सवारों को सुल्तान के खेमे की तरफ जाते हुए देखा। इनके चेहरे गर्दो गुबार में अटे हुए थे। ज़िक्रिया ने इनकी शक्ल और वज़ा क़ता से अंदाज़ा लगा लिया कि ये मुसाफिर हैं जो किसी दूर दराज मुकाम से चले आ रहे हैं। वो इन्हें देखकर खेमे के अंदर चला गया। कुछ देर बाद इसने सुल्तानी मुनाद की आवाज़ सुनी जो ऐलान कर रहा था कि जिन्हें सुल्तान का तकर्रुब हासिल है वो इसी वक्त सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाएं। ज़िक्रिया ने सोचा कि इसे सुल्तान के पास जाना चाहिए या नहीं। वो ये भी जानता था कि इसे सुल्तान का तकर्रुब हासिल है और अगर इसने हाजिरी न दी तो इसके नतीजे बहुत बुरे निकलेंगे। इसने अपने पूरे वजूद में खौफ की एक लहर से दौड़ती महसूस की। दिल न चाहने के बावजूद वो उठा और सुल्तानी बारगाह के शयान शान लिबास पहनकर सुल्तान के खेमे के दर पर जा खड़ा हुआ। दरबानों ने इसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। वो अंदर पहुंचा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अजीब था।
तशवीशनाक और फिक्र आमेज। सनान पाशा और उस्ताद अरसलान सुल्तानी चौकी के दाएं बाएं मुस्तैद और चौकन्ना खड़े थे। उनके सामने सुल्तानी असाकिर के नामवर सरदार और अलमबरदार खड़े थे। इनके शानदार अमामों की नुमाइश ऐसी ना थी जो देखने वाले को मुतासिर किए बगैर रखती। जिक्रिया ने इस दरबार में अपनी जगह तलाश की तो वो सबसे पीछे मिली। वही दुबकर खड़ा हो गया। सुल्तान अभी तक नहीं आया था। कुछ देर बाद नकीब के शोर में सुल्तान नमदार हुआ। नकीब आवाज़ बुलंद हाजरीन को सुल्तान की आमद से मुतल्ला कर रहा था। जिक्रिया ने महसूस किया कि हाजरीन में सरकशी के आसार मौजूद हैं। वो सुल्तान को अफसोस और गुस्से की नज़रों से देख रहे थे। सुल्तान की नज़रें जिक्रिया पर पड़ गईं। इसने किसी का नाम लिए बगैर मुखातिब किया, मैं हाजरीन में ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जिनके सरों में सरकशी और दिलों में बेइत्मीनानी ने घर कर लिया है। सनान पाशा ने अर्ज़ किया, मैं सुल्तानी अहकाम की बजा आवरी में ज़बान मकान से गुजर जाने को तैयार हूँ। उस्ताद अरसलान के पीछे रहता बोल उठा, दुनिया के कई उलुल अज़्म अपने दस्तो बाजू की कम हिम्मती से वो नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे, लेकिन मैं सुल्तान को यकीन दिलाता हूँ कि अगर पूरा ज़माना किनारा कशी इख्तियार कर ले तो अरसलान सुल्तान के पास यको तन्हा खड़ा नजर आएगा, क्योंकि मैं बेवफाई और कम हिम्मती के मफहूम से बिल्कुल ही नाबल्द हूँ। जिक्रिया के जी में है कि वो भी कुछ कहे, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। पूरे दरबार में बड़ी बेचैनी पाई जाती थी। ऐसा लगता था गोया सनान पाशा और उस्ताद अरसलान ने इन सबको ज़लीलो खार करके रख दिया है। इनके चेहरे और मुस्लिम नज़रें कुछ कहने के लिए बेचैन थी, लेकिन सुल्तानी रोब और दबदबे ने इन्हें साकित कर रखा था। सुल्तान ने ऐलान किया, मैं शाह का ताक़ुब करना चाहता हूँ। मेरे मुखबरों ने मुझे खबर दिया कि शाह खुरासान में बैठा मेरी वापसी का मुंतज़िर है। मैं नहीं चाहता कि वो मज़ीद ज़हमत इंतज़ार उठाए। हाज़रीन ये समझे कि शाह सुल्तान वापसी का ऐलान कर रहा है, इसलिए इनके चेहरों से खुशी और एहसास से फतहमंदी झलकने लगा। सुल्तान ने कहा, अफसोस कि मैं किसी एक जगह नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं मौज में हूँ। मौज का किसी जगह ठहर जाना मौत के मुतरादिफ होता है। हमारी ज़िंदगी यही है कि हम चैन से न बैठें। एक सरदार ने मुंह टेढ़ा कर लिया और दिलेरी से ऐलान कर दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म को इस ऐलान से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि मौजें भी पत्थरों के जोफ में सो जाया करती हैं, ताकि ताज़ा दम होकर दूसरी मौजों के साथ नए अज़्म और नए हौसले से आगे बढ़े। सुल्तान ने तैश में पूछा, ये कौन बदबख्त है जिसकी मौत इसकी बातों में रक्स कर रही है? किसी दूसरे सरदार ने ऐलान किया, जनाबे वाला मैं तो बस एक मामूली से लिबासी को अपने लिए बाइसो इज़्ज़ो वक़ार समझूंगा, क्योंकि जब मैं सुल्तानी दरबार में आया था तो उस वक्त यही मामूली लिबास मेरे जिस्म पर था, लेकिन जब से मैंने सरदारी लिबास पहना है अपने घर और अज़ा से दूर अपनी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ ख्वारो ज़ुबू फिर रहा हूँ। मेरा पुराना लिबास दरवेश के खरके की तरह है, जिसको पहनकर मैं दुनिया और इसके हिर्सो तमा से पीछा छुड़ा सकता हूँ। सुल्तान ने गजबनाक नजरों से हाज़रीन को घूर पूछा, और किसी को कुछ कहना है? कई सरदार बेकबक बोल उठे, हम अपने दोनों साथियों की तायद और इत्तफाक राय का ऐलान करते हैं। हम भी अगर कुछ कहेंगे तो यही कहेंगे। सुल्तान ने ऐलान किया, लेकिन तुम सब मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम सब ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो मैं सनान पाशा, अरसलान और इसके साथ ही सुल्तान ने जिक्रिया की तरफ देखा और बात मुकम्मल कर दी, तब फिर मैं इन दोनों को लेकर आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं सरकश तूफान हूँ जो आगे जाता है पीछे नहीं हटता। कई सरदारों ने जवाब दिया, हम सबसे पहले तो अपने घर जाएंगे, इसके बाद कहीं और, ये हमारा आखिरी फैसला है। सुल्तान ने ऐलान किया, बुज़दिल, कम हौसला और बेवफा सरदारों को मेरा दरबार छोड़ देना चाहिए। मैं अपने रूबरू इन्हीं को देखना चाहता हूँ जो मेरी तरह मौज और सरकश तूफान की मानिंद है। सुल्तान का तखमीना बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि इसका ख्याल था कि इसकी आवाज़ पर कुछ सरदार तो जरूर लब्बैक कहेंगे, लेकिन इनमें से हर शख्स ने सुल्तान का हुक्म नहीं माना और सामने से उठकर चला गया। लेकिन उनमें जिक्रिया अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। सुल्तान ने एक बार फिर जिक्रिया की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तू यहाँ क्यों खड़ा है, बाहर क्यों नहीं चला गया? जिक्रिया ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस भीड़ के साथ कहाँ जाऊँ, मैं यहीं सुल्तान मुअज़्ज़म के आसपास रहना चाहता हूँ। सुल्तान चिड़चिड़ा हो रहा था। इसने झुंझुलाहट में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ये सब पहले अपने घर जाएंगे, इसके बाद कहीं और, ये इनका आखिरी फैसला है। मैं इन्हें जाने की इजाज़त देता हूँ, जहाँ चाहे चले जाएं, घर जाएं, इसके बाद जहन्नुम में चले जाएं। इसके बाद सनान पाशा से कहा, सनान पाशा, तुझको ईरान और शाम की सरहदों पर ही रहना है, क्योंकि तू यहाँ से शाह सफ़ी और मिस्र के ममलूक हुक्मरान की हरकत सिकनात पर अच्छी तरह नजर रख सकेगा। शायद वो चोट खाए हुए सांप की तरह किसी भी तरफ से हमलावर हो सकता है। इसका भी इम्कान है कि वो मिस्र के ममलूक खानदान की हमायत हासिल कर ले और हमें अब्बासी खलीफा के गुलाम हुक्मरान से मुकाबला करना पड़ जाए। तू बदस्तूर एशिया कोचा की अफवाज का सिपा सलार रहेगा। सनान पाशा ने दबी दबी जुबान में पूछा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब किधर का रुख फरमाएंगे? सुल्तान ने जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है कि भगोड़ों को इनके घरों की तरफ हाँक दिया जाए
और अपनी जानिसार सिपा से अपनी नई मुहिम जोई का आगाज कर दिया जाए। उस्ताद अरसलान बेचैन था कि सुल्तान इसकी बाबत क्या फैसला करता है। आहिस्ता से पूछा और सुल्तान आलीशान मेरी बाबत क्या फरमाते हैं। सुल्तान ने जवाब दिया, तू मेरे साथ रहेगा क्योंकि तू भगोड़ों में शामिल नहीं है। तू और तुझ जैसे दूसरे लोग मेरे लिए बसा गनीमत है। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जिक्रिया सुल्तान से अपनी बाबत सवाल करना चाहता था लेकिन खुद में हौसला नहीं पा रहा था। सुल्तान की तेज नजर इसके अंदर उतर गई से मुखातिब किया, जिक्रिया तू यकीन जानने के लिए बेचैन है कि मैंने तेरे लिए क्या सोचा है तो सुन। मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा। तू नया नया जवान हुआ है और एक ऐसी खातून का आशिक है जो शादीशुदा है। मर्दों जैसी तुझ में कोई बात नहीं, तुझे औरतें बड़ी आसानी से फतह कर सकती हैं। फिर तू हमारा क्या काम करेगा। जिक्रिया को अब भी यही उम्मीद थी कि शायद सुल्तान नाहिद को जिक्रिया के हवाले कर दे। बोला, सुल्तान वाला शान, आप इस फलसफे से तो वाकिफ ही होंगे कि किसी नौजवान की अहम तरीन ज़रूरत क्या हो सकती है। अगर मुझको इत्मीनान हो जाए कि मैं अपनी अहम तरीन शय सुल्तान की नवाजिश से हासिल कर लेने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं इस उम्मीद में अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। सुल्तान तैश में आगे बढ़ा और जिक्रिया के मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। तू अपनी बहादुर जानिसारी को मशरूत कर रहा है। तेरी ये जुर्रत के मुझसे अपने आका से किसी शय का मुतालिबा करे, मैं ये खराफात, ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तू ज़ेरे तरबियत है। फिर उस्ताद अरसलान से कहा, अरे ये क्या तालीम दी गई इस वहशी को, इसको तो बात करने का भी सलीका नहीं। उस्ताद अरसलान ने अर्ज किया, हुजूर वाला, इसकी बातों से मैं खुद भी आजिज हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको क्या हो गया है। जिक्रिया के होंठ फट गए थे और इनसे खून जारी हो गया था। वो सुल्तान से इतना खौफजदा हो चुका था कि अपने होंठों से रिश्ते हुए खून को भी पूछ ना सका। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान को हुक्म दिया, जिक्रिया को कैद कर दिया जाए। उस्ताद अरसलान ने इसी वक्त जिक्रिया को सुल्तानी मुहाफिजीन की तहवील में दे दिया और इसको जिंदा खाने में डाल दिया गया। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान से कहा, अरसलान तू ही बता के मैंने जिक्रिया के साथ जो कुछ किया इसमें मैं कहाँ तक हक बजानिब हूँ। अरसलान ने जवाब दिया, सुल्तान के हर काम में कोई ना कोई मसला ज़रूर होती है, इसमें भी कोई ना कोई मसला ज़रूर होगी। सुल्तान ने कहा, हाँ मेरे हर काम में कोई ना कोई मसला ज़रूर होती है। अब मैंने जिक्रिया को कैद खाने में डुलवा दिया है। क्या तू जानता है कि मैंने इतना सख्त कदम क्यों उठाया है। मैं जिक्रिया को कत्ल भी कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो वफादार भी है और जानिसार भी। अफसोस कि एक औरत ने इसके नापुख्ता ज़हन को महसूस कर लिया है। अरसलान तू जिक्रिया से कैद खाने मुलाकात कर, इसको समझा के उस जुनून को अपने दिलो दिमाग से निकाल बाहर करे। मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ लेकिन इस वक्त जब वो अपने दिल से इश्क को निकाल बाहर करेगा। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा कि जिक्रिया के दिलो दिमाग से सौदाए हिमाकत निकाल दिया जाए। सुल्तान बहुत मुसरिब हो रहा था। वो बड़ी तेजी से टहलने लगा। सन्नान पाशा दम बखुद खड़ा था। उस्ताद अरसलान सुल्तान के सामने से हटने की दुआ मांग रहा था। सुल्तान यकायक फिर गया। ये लोग कितनी सरकशी इख्तियार करें, मैं इन सबको इनके घरों को भेज दूंगा जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इनकी जगह इन्हें दी जाएगी जो रज़्मगाहों से मोहब्बत करते हैं। मैं सरकश तूफानों की तरह इन बुज़दिलों और भगोड़ों को खसो खाशा की मानिद बहा ले जाऊंगा। सन्नान पाशा ने सुल्तान के गुस्से को कम करने की कोशिश की और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक ज़रा से इशारे की देर है, ये खादिम सरफरोशों की भीड़ लगा देगा। हुज़ूर वाला को इन कम हौसला इंसानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सुल्तान ने उकाबी नजर सन्नान पाशा को घूरा और कोई तवक्कुह के बाद कहा, तू सही कहता है, मुझे इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जा और इन भगोड़ों के शानदार मुतबादिल फराहम कर क्योंकि मैं इन भेड़ों की वजह से अपनी मुँह मुलतवी नहीं कर सकता। सन्नान पाशा और उस्ताद अरसलान अपनी अपनी जानें बचाकर सुल्तान के खैमे से निकल आए। रास्ते में जुदा होने से पहले उस्ताद अरसलान ने कहा, बाखुदा जिस खूबसूरती से आपने सुल्तान से इजाज़त हासिल की है मैं इसकी दाद देता हूँ। सन्नान पाशा ने जवाब दिया, इसके अलावा कोई सूरत ही बाकी ना थी, लेकिन मैंने सुल्तान से जो कुछ कहा है इसको पूरा भी कर दूंगा। उस्ताद अरसलान ने कहा, और मैं जिक्रिया पर काम करूंगा क्योंकि अब ये खदशा पैदा हो गया कि ये नौजवान अपनी जज्बातियत और नातजर्बा कारी में सुल्तान के हाथों कत्ल हो जाएगा। उस्ताद अरसलान अपने खैमे में कुछ देर ठहरा। इसके बाद जिक्रिया के पास चला गया। वो मुसल्ला मुहाफिजों के घेरे में सर झुकाए बैठा था। वो मालूम नहीं किस सोच में था कि उस्ताद अरसलान की मौजूदगी को काफ़ी देर तक महसूस ही ना कर सका। अब वो जिक्र से हमकलाम हुआ भी था कि एक मुहाफिज घबराए व अंदर दाखिल हुआ और अरसलान को मुखातिब किया, जनाबे वाला, हम सब एक बड़ी मुसीबत से दो चार होने वाले हैं, बराह करम आप ये इत्तला सुल्तान तक पहुँचा दें। मुहाफिज की आवाज़ ने जिक्रिया को सर उठाकर अपने सामने देखने पर मजबूर कर दिया। वो बिल्कुल अपने पास और सामने उस्ताद अरसलान को देखकर खड़ा हो गया। खजालत से बोला, आप यहाँ कब तशरीफ़ लाए उस्ताद मोहतरम। उस्ताद अरसलान ने जिक्रिया को जवाब दिया, अभी अभी बस चंद लम्हे गुजरे हैं मुझे यहाँ आए हुए। इसके बाद हवास बाख्ता मुहाफिज से पूछा, क्या बात है, खुलकर बता। मुहाफिज ने जिक्रिया की तरफ देखते हुए अर्ज़ किया, मैं तखलिया में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। अरसलान ने जिक्रिया से कहा,
میرا نادان اور جذباتی بچے، میں پہلے اس کی سن لوں پھر تجھ سے بات کروں گا، لیکن یاد رہے کہ میں تجھ سے کچھ امیدیں وابستہ کر کے آیا ہوں، مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ ذکریہ نے سر جھکا کر جواب دیا، پہلے آپ اس سے بات کر لیں، لیکن آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے زخمی ہونٹ پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ استاد ارسلان محافظ کے ساتھ قید خانے سے باہر چلا گیا۔ اس نے گوشی میں پوچھا، ہاں تو اب بتا، تو مجھ سے کس قسم کی باتیں کرنا چاہتا ہے؟ محافظ نے عرض کیا، جناب والا، ابھی بھی اطلاع آئی ہے کہ سلطان نے جن لوگوں کو بھگوڑا کہا ہے وہ سرکشی اور بغاوت پر مائل ہیں، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ سلطان اس سلسلے میں جس چیز کو قید خانے میں ڈالے گا، یہ سرکش اور باغی انہیں رہا کرانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ذکریہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، یعنی بلوائی اس کے محافظوں پر حملہ کر کے ذکریہ کو چھڑا لے جائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے تو یہ کتنی نازیبا اور شرمناک بات ہے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، کسی شخص کو سنان پاشا کے پاس بھیج دیا جائے اور اس کو اس نازک صورتحال سے مطلع کر دیا جائے، وہ اس کا توڑ نکال لے گا۔ محافظ خوفزدہ تھا، پوچھا، کیا سنان پاشا ہماری کوئی مدد کر سکیں گے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ محافظ چلا گیا اور استاد ارسلان ذکریہ کے پاس جا کھڑا ہوا، بولا، ذکریہ، آج تو نے اپنے استاد کو بے حد شرمندہ کیا، میں تجھ کو اتنا نادان نہیں سمجھتا تھا۔ استاد ارسلان نے محسوس کیا کہ ذکریہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، اس کے دونوں ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اشکال نظروں سے استاد کی طرف دیکھا اور عرض کیا، استاد محترم، میں اپنی غلطی پر شرمسار ہوں، اب میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی اس غلطی پر قاتل بھی ہو سکتا تھا۔ استاد ارسلان نے کہا، کیا میں نے اپنے جملہ شاگردوں کو ہمیشہ ہی نہیں بتایا کہ اعتماد بڑی مشکل اور محنت سے پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ختم بڑی آسانی اور نادانی سے ہو جاتا ہے؟ تیرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ذکریہ نے پوچھا، میری عدم موجودگی میں سلطان کیا کہہ رہے تھے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، سلطان کو بہت افسوس ہے کہ تو نے ایک ایسی روش اختیار کی جس کی تجھ سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ذکریہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا کہ میری اس پہلی غلطی پر معاف کیا جا سکتا ہے؟ استاد ارسلان کو امید نہیں تھی کہ بات اتنی جلدی آسانی سے بن جائے گی۔ بولا، میں کوشش کروں گا، ممکن ہے سلطان معاف کر دیں، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تو پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا؟ ذکریہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ استاد ارسلان نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن تو بھی اپنے دل و دماغ سے وہ سب کچھ نکال دے جو تیری بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔